Hello, my dear students. My name is Dr. Millie Nelwal, and I am a biology expert. I did my PhD in genetics subject. I have taught NEET students, 11th, 12th students, as well as microbiology students. Today, this is the second lecture of Animal Kingdom, which is chapter 4. So today, in first lecture, we have covered the introduction part. आज हम पढ़ेंगे the further topics. So let's get started with the lecture. In Animal Kingdom, you should know the three main points. Okay, animal kingdom ka first of all, it is also known as animalia. Okay, it is also known as animalia, kingdom animalia. If we talk about the mind map, first of all we are going to do a mind map of this chapter. उसके बाद हम further आगे पढ़ेंगे. So what all is included in this chapter? So the animal kingdom is divided into two topics. Okay, दो टॉपिक में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट टॉपिक इज basis of classification, and the next topic is classification of animals. Basis of classification means कि एनिमल का जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है, जो भी फाइलम्स 11 फाइलम्स जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि देयर आर 11 फाइलम्स इन एनिमल किंगडम. ओके, सो ये 11 फाइलम को कैटेगराइज कैसे किया गया, ऑन व्हाट बेसिस इट इज क्लासिफाइड. तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे विच विल हेल्प टू अंडरस्टैंड कि कैसे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हुआ है. ओके, सो द फर्स्ट criteria is level of organization. Second is symmetry. Third is germ layer. Fourth one is coelom. Fifth is body plan. Next is segmentation. And last but not the least is notochord. These are the 7 criteria which you have to remember on what basis the animal classification is done. Okay, these are the 7 criteria. So now moving towards the classification of animals, इसमें क्या आएंगे 11 phylums आएंगे. Okay, कौन कौन से 11 phylums हमने पहले भी किए थे. First is porifera. Porifera में there are pore bearing organisms. Second is Cnidaria. Cnidaria is also known as Coelenterata. Okay, this another name of Cnidaria is Coelenterata. Then there is Ctenophora. Ctenophora is the third phylum. Fourth phylum is Platyhelminthes. Platyhelminthes. Hell, okay. These are not the good phylum. Fifth is Aschelminthes. Again, there is hell, so it is also not a good phylum. Sixth phylum is Annelida. Annelida में क्या आते हैं? Segmented bodies. Okay, these are the segmented bodies ऐसे ना. So segmented body से हमें क्या याद आता है? Earthworm है ना. Earthworm is used in farming. Farmers को help करते हैं ना वो for farming. So we can say it is a good phylum. ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही हैं एनिमल्स, इसमें सब ऑर्गेनिजम्स अच्छे हैं ऐसा नहीं है. देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच आर पैरासिटिक, बट आपको याद रखने के लिए यू हैव टू रिमेंबर एनेलिडा इज अ गुड फाइलम. सेवेंथ इज
arthropoda. Arthropoda means, arthro means joints and poda means legs. Okay, so इसके अंदर आ जाते हैं insects. Okay, this is the first largest phylum, arthropoda. Then comes mollusca. Mollusca is the soft body animals. Okay, तो ये second largest है. This is the second largest phylum. So देखो first के बाद सीधे second largest phylum है. Arthropoda is first and mollusca is second largest. Ninth is echinodermata. Echino means spines and dermata means skin. जो skin के ऊपर spine like structures होते हैं, that's why it is named as echinodermata. जैसे कि starfish. 10th is hemichordata. हेमिकॉर्डेटा के बारे में इतना कुछ ज्यादा अभी तक पता नहीं है. ओके, हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा इट रिसेम्बल्स टू कॉर्डेटा फैमिली, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेमिकॉर्डेटा. प्रीवियसली इसको कॉर्डेटा फैमिली में ही रखा गया था, बट आफ्टर दैट इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉर्डेटा फैमिली. ये क्यों हुआ था, दैट वी विल स्टडी इन दिस फाइलम, दैट इज हेमिकॉर्डेटा. एंड द लास्ट वन 11th इज कॉर्डेटा, जिसके अंदर हम भी आते हैं, जिसके अंदर हम जो एनिमल्स देखते हैं वो भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं. ठीक है, सो दीज आर द 11 phylum. Porifera is the primitive phylum, most primitive phylum, और most advanced phylum कौन सी हो जाएगी, Chordata. Okay, this is the advanced phylum. Clear हो गया इतना? This mind map is clear. इतनी चीजें हमें ये चैप्टर के अंदर पढ़ना है. So now we should know something about animal kingdom. Animal kingdom के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए. First of all मैंने क्या बताया था कि इसको कौन सा किंगडम क्या बोलते हैं, एनिमेलिया. Okay, it is known as Animalia, Kingdom Animalia. Now Kingdom Animalia के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट इज इट इज मल्टी सेलुलर. ओके, दिस किंगडम इज मल्टी सेलुलर. इसमें जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, दैट विल बी मल्टी सेलुलर. पहली बात. सेकेंड इज दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. ओके, हेटेरोट्रॉफ्स मतलब कि दे कांट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना. प्लांट्स कैसे अपना खाना खुद बना सकते, दे आर ऑटोट्रॉफ्स. वी आर हेटेरोट्रॉफ्स बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट्स. ओके, हम एनिमल्स को भी खाते हैं, हम प्लांट्स को भी खाते हैं. थर्ड पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है. सो गो थ्रू माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी. ओके, नाउ देयर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज द क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन which is taking place inside inside the body. Okay, process of nutrition taking place inside the body, that is known as mode of nutrition. तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो जाता है, दैट इज उसका एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज नोन एज होलोजोइक. राइट, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. दैट मीन्स कि वी आर टेकिंग द न्यूट्रिशन इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज नोन एज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं. अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा न्यूट्रिशन हम inside our body, we are taking the nutrition inside our body, that type of nutrition is known as holozoic type of nutrition. Okay, अब इसके अंदर कौन कौन से 5 स्टेप्स आते हैं ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ. फर्स्ट इज इंजेशन,
देन कम डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। द नेक्स्ट स्टेप इज assimilation, and the fifth step is digestion. Okay, these are the 5 steps. Ingestion यानी कि food intake of food. Digestion, that is the digestion which is taking inside our stomach and the intestine. Then absorption is also taking place inside our body, है ना. Nutrient absorb होता है through the wall of intestine and stomach, वो सब absorb होता है. Assimilation मतलब कि the nutrition is going to the tissues, and egestion यानी कि the digestive waste which is coming out of our body, that is known as egestion. That is the last step. Clear हो गई इतनी चीज? Okay. So now, as I have told you, there is basis of classification. कौन से basis पे phylum को classify किया गया है, ठीक है? So the first one is the level of organization. सबसे पहले हम पढ़ेंगे level of organization. Level of organization में what happens? अच्छा, मेरे को आपको एक और चीज बतानी है, मैं ये मिटा देती हूँ, then I'll tell you. जो ये एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है. ओके, देयर आर 2 सब किंगडम्स which comes under phylum Animalia. Sorry, kingdom Animalia, not phylum. Okay, so animal kingdom को हम मेटाजोआ भी बोलते हैं. Now what do you mean by metazoa? Metazoa मतलब कि group of multicellular organisms. Okay, that is known as metazoa. अभी मैंने आपको बताया था Animalia is the multicellular animals. Okay, so metazoa का मतलब भी वही है. Metazoa मतलब it is a group of multicellular organisms. Now it is divided into 2. Is divided into 2 subphylums, subkingdoms, not phylum, subkingdoms. First one is Parazoa, and second one is Eumetazoa. Okay, मैं बताती हूँ क्या है. पैराजोआ मतलब कि इट लैक ट्रू टिश्यू. इसके पास ट्रू टिश्यू नहीं होता, मतलब टिश्यू होता ही नहीं है. ओके, इनके पास क्या होते हैं, सिर्फ सेल्स होते हैं. ओनली सेल्स ही प्रेजेंट होंगे, टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, सो अब ये ऐसे एनिमल्स है जो मल्टी सेलुलर तो है, मल्टी सेलुलर है, उनके पास बहुत सारे सेल्स हैं. मल्टी सेल मींस कंटेनिंग मेनी सेल्स. ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं, so they are multicellular. Okay, but they don't have tissue, no tissue. क्लियर होगी ये चीज? इसके अंदर आ जाता है सबसे पहला वाला फाइलम, दैट इज पॉरीफेरा. ओके, इसके अंदर आ जाता है पॉरीफेरा. पॉरीफेरा सबसे प्रिमिटिव फाइलम है, उसके पास कुछ ज्यादा है ही नहीं. सो उसके पास सिर्फ सेल्स ही है, उसके टिश्यू बने ही नहीं. ठीक है, इट कंटेन्स ओनली सेल्स. अब आ जाओ यू मेटाजोआ. मेटाजोआ मतलब क्या था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए. यू मतलब कि ट्रू. ओके, यू मतलब होता है ट्रू. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर ट्रू मेटाजोआ. ओके, ट्रू मेटाजोआ के अंदर आ जाते हैं दैट कंटेन्स ट्रू टिश्यू. उनके पास टिश्यू होता है, दे कंटेन टिश्यू. ओके, टिश्यू भी हो सकता है. टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन. ऑर्गन भी हो सकता है. ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है. ओके, मतलब कि उनके पास टिश्यू होना चाहिए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. उनके पास टिश्यू होगा तो वो ऑर्गन भी बना सकते हैं, ऑर्गन भी होगा तो ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं. ओके, इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल्स. इसमें सारे फाइलम्स आ जाएंगे अदर देन पॉरीफेरा. पॉरीफेरा के अलावा कौन सा बचा, नाइडेरिया. सेकेंड वाला क्या था, नाइडेरिया. ओके, नाइडेरिया से लेके कॉर्डेटा तक
सारे फाइलम्स सब किंगडम यूमेटाजोआ में आ जाते हैं. ओके, फ्रॉम नाइडेरिया टू कॉर्डेटा. क्लियर हो गई ये चीज? क्या बताया मैंने? किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम. किंगडम एनिमेलिया को हम बोलते हैं मेटाजोआ. मेटाजोआ मतलब कि group of multicellular organisms. Now this metazoa kingdom is divided into 2 subkingdom, that is parazoa and eumetazoa. Okay, so subkingdom parazoa is not having true tissue. It lack true tissue. मतलब उनके पास टिश्यू नहीं होता, only cells present होता है. So the example is porifera. यूमेटाजोआ के अंदर कौन से आ जाते हैं? जिनके पास टिश्यू प्रेजेंट होता है. They contain true tissues. ओके, सो इसमें आ जाता है फाइलम नाइडेरिया टू फाइलम कॉर्डेटा, ऑल द 10 फाइलम्स. क्लियर हो गई ये चीज? ओके, सो नाउ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? अच्छा, ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? दीज आर सेल्स. अच्छा, व्हाट आर सेल्स? Cells are the fundamental unit of life. Okay, they form the structural and functional unit of life. ऐसा भी definition है. Okay, cells are the structural and functional unit of all living organisms. Cell से क्या बनता है? Cell forms tissue, and from tissue there is formation of organ, and from organ there is formation of organ system, and from organ system whole organism is formed. क्लियर? ये समझ में आ गया? क्या बताया मैंने? पहले क्या होता है? सेल्स होते हैं. सेल से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा. टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा. ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है. एंड ऑर्गन सिस्टम विल फॉर्म द ऑर्गेनिजम्स. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आपने बिल्डिंग और सोसाइटी को पता ही है, हम जहाँ रहते हैं. ओके, समझ लो ब्रिक्स जो होते हैं, ब्रिक्स किससे बने हुए? ब्रिक्स समझ लो सेल्स हो गए. ओके, अब ब्रिक्स को जुड़ जुड़ के क्या बनता है? वॉल बनता है. वॉल समझ लो टिश्यू है. ओके, अब वॉल मिला मिला के क्या बनाता है? रूम बनाता है ना? तो उसको ऑर्गन समझ लो. अब सारे रूम्स होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं. वो एक रूम बना के क्या बनाता है? होम बनाएगा, या कोई फ्लैट बनाता है. फ्लैट हो गया, ठीक है. फ्लैट या होम बनाएगा. अब उसमें जितने भी घर हैं, जितने भी होम्स हैं, ओके, वो सब मिला के क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एक बिल्डिंग, या फिर सोसाइटी, है ना? एक पूरी एक बॉडी बनाते हैं, एक पूरा सोसाइटी. जैसे कि कोई नाम है, समझ लो कि नाम है अग्रवाल सॉलिटेयर नाम है. ओके, अग्रवाल सॉलिटेयर के अंदर बहुत सारे विंग्स हैं, A B C D विंग्स हैं. तो वो क्या हो गए? फ्लैट्स हो गए, या बिल्डिंग गिन लो. ओके, वो होम के अंदर रूम आते हैं, रूम के अंदर वॉल. रूम किससे बना होता है? वॉल से बना होता है. वॉल किससे बना होता है? ब्रिक से बना होता है. क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, तो ऐसे ही हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन है. सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, सेल्स से क्या बनता है? टिश्यू बनता है. सेल का डेफिनेशन क्या बताया मैंने? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? अब टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी? टिश्यू में आपको 3 चीजें याद रखनी है. देखो, टिश्यू में आपको क्या रखना है? 3 पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? फर्स्ट इज इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. ओके, सिमिलर सेल्स होते हैं, सेम सेल्स नहीं होते, ये ध्यान रखना. सिमिलर सेल्स होते हैं. और क्या होता है? अलोंग विथ इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स. इनके पास इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होती है. मैं बताती हूँ क्या है. ओके, देन थर्ड पॉइंट इज दे शुड परफॉर्म
स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए टिश्यू की डेफिनेशन में। पहली बात क्यों ग्रुप ऑफ सेल्स है, देखो अभी ये सपोज सेल है, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, एक टाइप के सेल्स हैं। along with the इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स यानी कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जगह दिख रही है आपको, दिस इज द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, वाटर, सॉल्ट, फाइबर्स, ठीक है। देन ये सब मिला के इस इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्लस ग्रुप ऑफ सेल्स मिला के स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। ओके, तो उसको बोलेंगे हम टिश्यू। क्लियर हो गया ये चीज। देन टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। अब यहाँ पे आप ये डायग्राम जो देख रहे हैं ऑर्गन में, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एक ऑर्गन, एक हो गया लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एक स्टमक हो गया, ईसोफेगस हो गया, लीवर हो गया, सब के अलग अलग ऑर्गन्स है। ये किससे बने हुए, टिश्यू से बने हुए, है ना। अब ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाता है, organ system, it will form a specific organ system, ठीक है। some specific organ will group together and form a particular organ system. for example, अगर हम digestive system को ले लेते हैं, what happens in digestive system, क्या क्या होता है उसमें, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। सो दीज विल कंबाइन, लीवर होता है, पेनक्रियास होता है, दीज विल कंबाइन एंड फॉर्म द digestive system, करेक्ट। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बनता है, हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स, ओके। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मिला के क्या बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। देन देयर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, reproductive system, excretory system, urinary system, okay, there are many systems in our body. So ये सब system, all the organ system combine to form an organism. For example, human, हमारे अंदर भी है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, है ना। दीज ऑल कंबाइन, और हम क्या बनते हैं, कंबाइन होके एक पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है या फिर एनिमल बनता है। क्लियर हो गई ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये क्यों बताया मैंने, बिकॉज कुछ ऐसे फाइलम थे जो सिर्फ सेल्स बन के रह गए, मतलब कि उनके पास सिर्फ सेल्स है, वो टिश्यू नहीं बने, ठीक है। ऐसे ऐसे सेल्स प्रेजेंट है बहुत सारे। ऐसा कौन सा फाइलम है, दैट इज पॉरीफेरा। कुछ ऐसे टिश्यू थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो सिर्फ टिश्यू बन के रह गए, दे फॉर्म द टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, है ना, ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ। तो ऐसा सिर्फ स्ट्रक्चर बन के रह गया। सम फाइलम या सम ऑर्गेनिजम्स, दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि उन्होंने ऑर्गन बनाया, नॉट ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ओके। दे दे वर हैविंग ओनली ऑर्गन, ठीक है। तो उनको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसके पास सेल होगा उसको बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास टिश्यू होगा उसको बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास सिर्फ ऑर्गन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास ऑर्गन सिस्टम होगा दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 4 सिस्टम होते हैं, 4 लेवल्स होंगे। कौन सा लेवल, फर्स्ट लेवल इज सेल, सेल लेवल, दूसरा टिश्यू लेवल, तीसरा ऑर्गन लेवल, एंड फोर्थ वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो देखो पहला क्या बताया मैंने, पहला इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स उनके पास सिर्फ सेल्स होंगे, ओके। सेकेंड कौन सा बताया मैंने, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन सा आएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास सिर्फ टिश्यू होगा,
क्या बताया था टिश्यू की डेफिनेशन? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? थर्ड कौन सा आ जाएगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ही आ गया जिसमें सिर्फ ऑर्गन बनेगा। फोर्थ एंड द लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम, जिसमें ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 हो गए, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू 4: सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें कौन सा आ जाएगा? सबसे पहला फाइलम सेल्यूलर लेवल में, ठीक है। LOO दैट मीन्स की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में ऐसे मत लिखना। सो फर्स्ट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम किसके अंदर आता है? उसका क्या लेवल है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि पॉरीफेरा के पास सिर्फ सेल्स है, वो टिश्यू नहीं बना सकता। सेकेंड इज नाइडेरिया और थर्ड वाला टीनोफोरा। नाइडेरिया एंड टीनोफोरा can form tissue level of organization. That means कि they have tissues. They cannot form organ, but they contain the tissue in their body. In organ system, there is platyhelminthes. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन आ जाएगा? प्लेटीहेल्मिंथेस। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन वाले में सिर्फ एक ही है, दैट इज प्लेटीहेल्मिंथेस। अच्छा, ये भी आ सकता है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि व्हाट वाज द फर्स्ट फाइलम व्हिच इज हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सा आ जाएगा? एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस के पास सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है। ओके, उसके बाद से जितने हैं टिल कॉर्डेटा, दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि एस्केलमिंथिस से कॉर्डेटा के पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। ऑलराइट, ऑर्गन किसके पास प्रेजेंट है? सिर्फ प्लैटीहेल्मिंथिस के पास। टिश्यू किसके पास प्रेजेंट है? नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। ओके, दे कैन नॉट फॉर्म द ऑर्गन। एंड जो सबसे प्रिमिटिव है दैट इज पॉरीफेरा, उसके पास क्या है? सिर्फ सेल्स ही है, उसके पास टिश्यू बना ही नहीं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गई इतनी चीज आपको? ओके, अब इसके अंदर आपको आपकी एनसीईआरटी में दो सिस्टम्स दिए हुए हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम is divided into two. कौन कौन से? फर्स्ट इज इनकम्प्लीट एंड सेकेंड वन इज कंप्लीट। And now what do you mean by incomplete and complete? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग है फॉर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जितना पूरा हो गया, ठीक है। फ्रॉम माउथ टू एनस क्या होता है? एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं उसको। ओके, सो दिस एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की। ओके, मतलब कि सिंगल ओपनिंग यानी कि उनका माउथ भी उसी में रहेगा, वो ओपनिंग वर्क करेगी एज अ माउथ ऑल्सो, एंड इट विल ऑल्सो फंक्शन एज एनस ऑल्सो। ओके, मतलब खाना भी वहीं से होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी वहीं से निकलेगा। सो दिस टाइप ऑफ digestive system is called as incomplete digestive system. Complete digestive system में क्या होगा? ऐसे organisms जिनके पास टू ओपनिंग है। ओके, फर्स्ट ओपनिंग इज फॉर माउथ एंड सेकेंड ओपनिंग इज फॉर एनस, मतलब सेपरेट उनके पास ANUS, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। अरे ओके, यहाँ पे आ जाएगा ANUS। क्या हो रहा है ये?
ANUS, ओके, एनस। इतना चीज क्लियर हो गया। क्या बताया मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होंगी, एक होगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट में क्या होगा, सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि दिस इज द हाइड्रा, ओके, ये हाइड्रा है, इट इज हैविंग, यहाँ पे उसका माउथ होता है, ठीक है, यहीं पे ही उसका सिंगल ओपनिंग है, ये एक ही ओपनिंग है उसके पास, ठीक है, एक ही ओपनिंग है, यहीं से उस वो इट विल वर्क एज माउथ ऑल्सो एंड इट विल ऑल्सो वर्क एज एनस। अगर आप हमारी बात करो, हमारे में क्या होता है, माउथ होता है, फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ, यहाँ पे आ जाते हैं ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, देयर विल बी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे मिला के, एंड देन देयर विल बी सेकेंड ओपनिंग विच इज नोन एज एनस, मतलब कि फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ एंड सेकेंड वन इज एनस, ओके। अब क्लियर हो गया इनकम्प्लीट और कंप्लीट का मतलब। तो ऐसे इसमें आ जाता है एग्जाम्पल, लेटी हेलमिंथिस, लेटी हेलमिंथिस आ जाएगा, ओके। इसके अंदर आप ले लो, जैसे कि हम लोग आ जाते हैं कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा, है ना। नाउ विल टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, आपके में दूसरा दिया गया सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें भी टू टाइप्स होती है, फर्स्ट इज ओपन, ओपन टाइप, EN, ओके, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है, ब्लड हमारी हार्ट से पंप होता है, लेकिन जो सेल्स और टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, ऐसे तैर रहे होंगे ब्लड के अंदर, ओके। सपोज दिस इज द हार्ट, ये समझ लो हार्ट है, यहाँ से ये समझ लो आर्टरी आ रही, मे बी हो सकती है आर्टरी, नहीं भी हो सकती, और यहाँ पे ये सारे ऑर्गन्स पड़े, तो ये क्या होगा, ब्लड क्या करेगा, ऐसे सब जगह पे ब्लड 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 हो जाएगा, ओके। देयर इज नो कैपिलरी, सब वो ब्लड के अंदर ही टिश्यूज और सेल्स और ऑर्गन सब अंदर ही उसमें फ्लडेड होंगे, दैट इज नोन एज ओपन, ठीक है। दैट मीन्स सेल्स एंड टिश्यूज directly bathed in blood, alright। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आर्थ्रोपोडा टिल हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक सबके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इफ यू टॉक अबाउट क्लोज्ड टाइप, क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड इज सर्कुलेटिंग, ब्लड तो सर्कुलेट करेगा, लेकिन इनके पास क्या होगा, देयर विल बी सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऑफ वेराइन डायमीटर्स। इसका मतलब ये होता है कि हार्ट से हमारी आर्टरी, ब्लड वेन्स होंगी इनके पास, ठीक है, ब्लड वेसल्स होंगी। ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी आ जाती है, फर्स्ट ब्लड वेसल होती है, दैट इज आर्टरी, सेकंड इज वेन एंड थर्ड इज कैपिलरी, ओके। ये तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, तो ये तीनों ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पास होगा, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड ऐसे ही नहीं घूमता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स ले जाता है ऑर्गन्स के पास, ऑर्गन्स में से, अब मैं क्लियरली आपको समझाती हूँ कैसे होता है।
मेरे को पहले कुछ मिटाना पड़ेगा, ये मिटा देती हूँ। ओके, देखो क्या होता है, इमेजिन हमारे पास क्या होता है, हार्ट है। सपोज दिस इज द हार्ट। हमारा हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर्ड ना, ठीक है। सपोज दिस इज द हार्ट, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आर्टरी आ रही है। आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे समझ लो हमारे पास कोई ऑर्गन है, तो आर्टरी अब क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी वेन्स में। तो मैं 2 ही बना रही हूँ, ऐसे बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ब्लड देगा, ये ब्लड दे के देन इट विल कन्वर्ट इनटू वेन, जो कि वेन जाएगी वापस हार्ट में। मैंने बहुत गंदा डायग्राम बनाया है, बट आप समझ लो, ठीक है। यहाँ से ब्लड जाएगा, इधर ब्लड जा रहा है, ब्लड किस में जा, ये क्या है, आर्टरी। फिर क्या होता है, आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, ठीक है। ये कैपिलरीज के थ्रू क्या हो जाए, ऑक्सीजन भी जाता है और CO2 वापस ब्लड में आ जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या हुआ, सेल्स को मिल गया। देन सेल्स को मिलने के बाद सेल्स ने क्या किया, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड को दे दिया। ओके, तो ये वापस जाएगा ब्लड से वे, ये क्या होती है जो, अच्छा जो ऑक्सीजन लेके जाती है दैट इज आर्टरी, इट इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स इट कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दीज आर द वेन। अभी लेके जाएगी हार्ट के पास, हार्ट दे देगा लंग्स को, ऑक्सीजन दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा वो लंग्स को, एंड लंग्स के थ्रू हमारे नोज से बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया ये चीज, आपको समझ में आ गया व्हाट इज हैपनिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड क्या है, कैपिलरी के अंदर ही है, ठीक है। वो यहाँ पे ऐसे नहीं, इधर इधर नहीं पड़ा हुआ है ऐसे ऑर्गन के पास, ऑर्गन या सेल्स के पास नहीं है। ये चीज कहाँ हो रही है, सिर्फ ओपन में। ओपन में सेल्स और टिश्यू क्या होंगे, ब्लड में तैर रहे हैं, ब्लड में फ्लड कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ओके। बट दिस नॉट हैपेंस इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गई ना आपको ये चीज। सो द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड में कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें 2 ही एग्जाम्पल्स आते हैं, ओके। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एनेलिडा। अब देखो बहुत वियर्ड है, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आता है, तब हेमिकॉर्डेटा आता है, लेकिन सबसे पहला जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, ठीक है, जो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे मिला, सॉरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिला, एनेलिडा में, ओके। एंड एनेलिडा के पास होता है, और किसके पास होता है, कॉर्डेटा के पास। बस ये 2 के पास ही होता है, ओके। दीज टू ओनली कंटेन्स द क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोडा से हेमिकॉर्डेटा के पास ओपन होगा, और एनिलिडा से पहले जितने भी थे उनके पास तो क्या सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से आया, एनिलिडा से, ओके। क्लियर हो गया ये चीज, समझ में आ गया। नाउ कम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सेकेंड पॉइंट जो आता है दैट इज सिमेट्री। अभी तक पहले हमने क्या बात किया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल सेल था, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसमें सारे फाइलम्स आते थे। अभी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फाइलम इज ऑल्सो डिवाइडेड, ठीक है। सिमेट्री यानी कि अब इसमें भी पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय सिमेट्री। द स्टेट ऑफ हैविंग टू इक्वल halves passing through
central axis, okay, of the body. इसको बोलते हैं सिमेट्री. द स्टेट ऑफ हैविंग टू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी. अब सेंट्रल एक्सिस पहले आपको पता होना चाहिए क्या है. सेंट्रल एक्सिस यानी कि अब बॉडी का सेंटर गिन दो. जैसे कि सपोज दिस इज द एग्जांपल, ये जो ये यहाँ सेंटर है ना, दिस इज द सेंटर, ये सेंटर हो गया. तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करो. ठीक है, देखो ये भी इमेजिनरी लाइन यूं जाती है, सेंटर से होके जाती है, ये भी सेंटर से होके जाती है, और ये वाली भी सेंटर से होके ही जाएगी. ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज. सो दिस इज द सेंट्रल एक्सिस. जो बीच में लाइन है, ये लाइन पूरी इट इज द सेंट्रल एक्सिस. हमारे समझ लो बॉडी का सेंटर पार्ट. ओके, उसको एक इमेजिनरी लाइन को इमेजिन करो सेंटर से. सो दैट इज द सेंट्रल एक्सिस. नाउ एक और चीज आपको पता होना चाहिए, दैट इज प्लेन. अब सपोज वी आर यू हैव चॉप्ड एनी ओनियन पोटैटो. नहीं किया है तो मतलब देखा तो हो गई. सो हाउ onion is chopped, first it is cut into two equal halves. ठीक है, सेंटर में से कट किया जाता है. तो जैसे हम जो कट कर रहे हैं ना, वो एक प्लेन हो गया. ओके, दिस इज वन प्लेन. समझ में आ गई. तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज सेंट्रल एक्सिस एंड प्लेन. तो आपको ये समझ में आ जाएगा. सो नाउ सिमेट्री. अब क्या हो सकता है, सिमेट्री जो है इट कैन बी, अब ऐसा हो सकता है कि बॉडी कांट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ. है ना, ऐसे हो सकता है कि बॉडी डिवाइड नहीं हो सकती. एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, सिमेट्री के अंदर दो सिचुएशन है. एक सिचुएशन है जिसमें बॉडी डिवाइड नहीं हो सकती टू इक्वल हाफ में. एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें बॉडी डिवाइड हो सकती. अब जिसमें बॉडी डिवाइड नहीं हो सकती, इट इज नोन एज एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल सिमेट्री. ठीक है, तो पहला तो हो गया ये. ओके, सो इसका एग्जांपल आ जाता है पॉरीफेरा. एग्जांपल इज पॉरीफेरा. अच्छा, आप जो ट्री होता है, ट्री को कभी हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एसिमेट्रिकल. इसकी उसकी कोई एक प्रॉपर सिमेट्री है ही नहीं, हम उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते. वैसे ही पॉरीफेरा को भी हम नहीं कर सकते. पॉरीफेरा कैसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस. तो आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से कैसे भी नहीं कर सकते इसको इक्वल हाफ में डिवाइड. अमीबा होता है, जैसे आप अमीबा को कर सकते हो, नहीं कर सकते. ऐसे इसमें आते हैं स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस ऐसे ऐसे होते हैं, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, कहीं से भी डिवाइड कर लो इक्वल होगा ही नहीं. है ना, इसलिए जिससे उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, जिसमें बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. नाउ अब दूसरा सिचुएशन क्या बताया मैंने, जिसमें बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. अब ऐसी सिचुएशन में भी दो टाइप्स आती है. इसमें भी दो टाइप्स आती है. पहला क्या है, पासिंग थ्रू एनी प्लेन. दूसरा सिचुएशन है पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है, यहां पे देखो, पासिंग थ्रू एनी प्लेन मतलब कि कहीं से भी आप काटो, वो दो इक्वल हाफ में ही डिवाइड होंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला डायग्राम देखो, इसमें आप चाहे यहां से ऐसे कट मारो तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यहाँ से ऐसे कट मारो तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, और यहाँ से मारो तो भी वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा.
जैसे कि ओनियन, ओनियन को आप एक ही जगह से कहीं से भी काट सकते हो ना, तो 2 इक्वल हाफ में ही मोस्टली डिवाइड होता है। ओके, सो दैट इज नोन एज एनी प्लेन। कोई भी जगह से, कोई भी प्लेन से काटो, बट ये है कि वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पासिंग थ्रू एनी प्लेन में वो सेंट्रल एक्सिस से ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यहाँ से काट रहे हो या यहाँ से काट रहे हो, ऐसा नहीं। कटिंग कहाँ से होनी चाहिए? सेंटर से ही होनी चाहिए। ओके, सो दिस टाइप ऑफ symmetry where body can be divided into two equal halves passing through any plane, कोई भी plane से करो तो वो two equal half में ही divide होती है, that is known as radial symmetry. okay, second अभी इसमें क्या है? passing through only one plane, मतलब कि आप सिर्फ उसको एक ही plane से काट सकते हो। ठीक है, एक ही plane से काट सकते हो तो आपको two equal halves मिलेंगे, that is known as bi लैटरल सिमेट्री। बाई मतलब कि दो, रेडियल मतलब कि पूरा सर्कस रेडियस है ना, इसलिए उसको रेडियल सिमेट्री बोला गया एंड इसको बोला गया बायलैटरल सिमेट्री, क्योंकि सिर्फ दो ही हमें इक्वल हाफ मिल सकते हैं। बाई मतलब टू इक्वल हाफ मिल सकते हैं एक ही से, एक ही लैटरल सिमेट्री मतलब एक ही प्लेन से। ओके, अभी आपको और क्लियर होगा। मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ। सी, ये है पॉरीफेरा। अब आप पॉरीफेरा को कट कर सकते हो, कहीं बीच सेंटर ले लो, ये सपोज समझ लो दिस इज द सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से कट करोगे तो भी आपको इक्वल नहीं मिलेगा, भले उसको ऐसे कट कर लो या ऐसे कट कर लो, कैसे भी कट कर लो, आपको ये सेंटर से होके जाना चाहिए। हाँ, ऐसे तो आपको सिमिलर मिलेगा ही नहीं। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? नो सिमेट्री, दैट इज एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल पॉरीफेरा। अब सेकेंड सिचुएशन क्या बताया मैंने? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? यू कट फ्रॉम हियर, you cut from this plane or from this plane, you will get two equal half, आपको two equal half ही मिलेंगे, that is known as radial symmetry. Bilateral में you can cut from one plane. okay, एक ही प्लेन से आप कट कर सकते हो तो ही आपको टू इक्वल हाफ मिलेंगे। अच्छा, अगर आपने ये प्लेन से कट किया ऐसे, ठीक है, आपने इसको डॉर्सल वेंट्रल साइड मिलेगा। ठीक है, ऊपर की साइड तो आपको विंग्स और सब मिल जाएंगे कॉकरोच के, नीचे की साइड क्या मिलेगा? स्टमक, स्किन है ना, उसका एनस, दैट विल बी ऑन द वेंट्रल साइड। ये डॉर्सल साइड हो गई, पीछे वाली वेंट्रल साइड हो गई ना। समझ में आ गया? क्लियर हो गई ये चीज? तो दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। अगर मैं ऐसे, हमको अगर हम अपने आप को काटेंगे तो कहां से काटेंगे? सपोज हम ऐसे ही कट कर सकते हैं अपने आप को ना, दिस वे। इफ यू कट लाइक दिस, you will not get two equal halves. You cut like this, you will not get two equal halves. Okay, so this is bilateral symmetry. Clear हो गया? So अब देखते हैं which phylums comes under these three categories. Asymmetry में Porifera again, it is a very primitive phylum. तो इसमें कुछ है ही नहीं, पहले भी इसमें कुछ नहीं था, सेल्स ही थे सिर्फ, टिश्यू तो बन ही नहीं पाया। ठीक है, इसमें भी उसके पास कोई सिमेट्री नहीं है। देन आता है नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। नाइडेरिया एंड टीनोफोरा के पास रेडियल सिमेट्री होगा। ये चीज ध्यान रख लो, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा के पास हमेशा दोनों के पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ही रहेंगे। ओके, बेसिक जो क्राइटेरिया रहेगा उन दोनों का सेम ही रहेगा ऑलवेज। ठीक है, तो उनके पास क्या है? रेडियल सिमेट्री है। एक और चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नीट। इखाइनोडर्मेटा में, इखाइनोडर्मेटा, ये आप ध्यान से सुन लो। इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट स्टेज होता है ना, जब वो फुल्ली डेवलप एडल्ट बन जाता है, ठीक है, और एक होता है उसका लार्वा स्टेज। जो एडल्ट स्टेज होगा ना, एडल्ट स्टेज विल हैव रेडियल सिमेट्री और लार्वा के पास होगी बायलैटरल सिमेट्री। ये चीज ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे मैंने रेडियल लिखा है बिकॉज एडल्ट के पास रेडियल है, रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर आप कंसिडर करोगे लार्वा को तो इट इज हैविंग बायलैटरल सिमेट्री। तो इसके पास दो सिमेट्री है एट पर्टिकुलर स्टेजेस ऑफ लाइफ। बायलैटरल सिमेट्री
प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा के पास सबके पास बायलैटरल सिमेट्री है, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा के लार्वल स्टेज के पास बायलैटरल सिमेट्री है। ओके, क्लियर हो गई इतनी चीज? दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है कि which was the first phylum which showed bilateral symmetry, तो आप क्या बताओगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री आया था, ठीक है, बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं इसीलिए। थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज जर्म लेयर। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड हमने कौन सा पढ़ा? सिमेट्री। थर्ड वी आर स्टडिंग अबाउट जर्म लेयर्स। ओके, अब जर्म लेयर्स होता क्या है? देखो, जब हम लोग, हमारा बर्थ कैसे होता है? पहले क्या होता है? एग एंड स्पर्म आते हैं, या फिर ओवम और स्पर्म आते हैं, दे विल फ्यूज, फर्टिलाइज एंड फॉर्म द जाइगोट, है ना? जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है? मॉड्यूला बनता है, मॉड्यूला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से, रुको मैं आपको लिख के समझाती हूँ। देखो क्या होता है, स्पर्म और ओवम, ये दोनों क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से क्या बनता है? मॉड्यूला बनता है, मॉड्यूला से क्या बनेगा? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला ना एक हॉलो बॉल जैसा होता है, सेल बॉल, समझो क्रिकेट की बॉल कैसी होती है, अगर आपने देखा है कभी, वो अंदर से हॉलो होती है ना, तो वैसे ही ब्लास्टुला भी सेल्स की बॉल होती है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स जो कि अंदर से हॉलो होता है। देन ब्लास्टुला इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर ब्लास्टुला इज गैस्ट्रुला, इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब ये जो स्टेज है इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन गैस्ट्रुला देयर आर जर्म लेयर, यहाँ पे जर्म लेयर बनती है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई? नाउ दिस जर्म लेयर, अभी जर्म लेयर ना दो चीज में डिवाइडेड है, कौन सा? एक तो हो गया डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकेंड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये जो क्या होता है, यही जर्म लेयर से हमारी बॉडी बनती है। हम पहले कैसे बने? हम भी पहले ऐसे जर्म लेयर ही थे। फ्रॉम दैट जर्म लेयर वी इवॉल्व्ड एंड फॉर्म, we not evolve, we grow and form into a complete human body. ओके, तो क्या होता है, डिप्लोब्लास्ट के पास पहले हमारे पास दो लेयर, जो डिप्लोब्लास्ट होते हैं उनके पास दो लेयर होती है। कौन सी दो लेयर होती है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ से जो यहाँ तक की लेयर है बाहर है, ठीक है, एक्टो मतलब बाहर, तो बाहर वाली जो लेयर है, सेल्यूलर लेयर, दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। ओके, जो फिर ये जो इनर वाली है, अंदर की जो लेयर है, दैट इज नोन एज एंडोडर्म। एंडो मीन्स अंडर, ठीक है, तो दिस इज द लेयर ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड। एक्टो मतलब की लेयर ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट आउटसाइड, एंड इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म देयर इज मेसोग्लिया। ये पिंक पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज मेसोग्लिया। अब ये मेसोग्लिया क्या है? ये तो देखो, ये और ये दोनों, ये दोनों सेल्यूलर लेयर है। इट इज द सेल्यूलर लेयर, मतलब कि सेल से बनी हुई लेयर। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट मेसोग्लिया, मेसोग्लिया इज नॉन सेल्यूलर लेयर। ओके, ये नॉन सेल्यूलर लेयर, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर में, ठीक है, इससे बना हुआ होता है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। इस वजह से इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, बिकॉज इट कंटेन्स एक्टोडर्म, mesoglea which is not a cellular layer, and endoderm। ये और ये लेयर की वजह से, बिकॉज इट इज द ट्रू लेयर, सेल से बनी हुई लेयर है, इसलिए उसको डिप्लोब्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि उसके पास दो ही लेयर है, फर्स्ट एंड टू, सेकेंड, है ना, डाई मीन्स टू, टू लेयर्स है। इफ यू टॉक अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक, हम लोग जैसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, ठीक है, हम लोग पहले तीन लेयर्स के थे, देन फिर हम लोग आगे बने। कौन सी तीन लेयर्स थी? दो तो आपको पता चल गई, फर्स्ट इज एक्टोडर्म,
एक्टोडर्म कौन सा है? दिस लेयर, आउटर लेयर। एंडोडर्म कौन सा होगा? अब बताओ आप मुझे। ये वाला लेयर, ठीक है, द इनर लेयर इज एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का ये जो पिंक लेयर दिख रहा है, इसमें देखो सेल्स भी बने हुए हैं। दिस लेयर इज mesoderm. Okay, mesoderm is also cellular layer. तो कितनी लेयर हो गई? 3 लेयर हो गई सेल से बनी हुई। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इसलिए उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिकॉज ट्रिप्लो मीन्स 3, तो इट कंटेन्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, 3 लेयर हो गई ना, 1, 2 and 3. That side is known as triploblastic. Clear? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्लियर हो गया ये चीज। नाउ अब जर्म लेयर के बेसिस पे कैसे उसको डिफरेंशिएट किया गया फाइलम्स को। फर्स्ट विच इज द वेरी प्रिमिटिव फाइलम, कौन सी है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को प्रिमिटिव बोला गया है, तो दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन जर्म लेयर। उसके पास तो टिश्यू भी नहीं था, सिर्फ सेल था, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सिमेट्री भी उसके पास कुछ नहीं थी, वो ये सिमेट्रिकल था। अब जर्म लेयर भी नहीं है उसके पास। देखो अगेन सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों बहने बहने हैं, ठीक है, बहने समझ लो इन दोनों को, बिकॉज दे कंटेन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। दोनों के पास स्टार्टिंग में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या था? दोनों के पास टिश्यू लेवल था। सिमेट्री भी दोनों के पास रेडियल सिमेट्री थी। अभी जर्म लेयर में भी दोनों के पास डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लो मतलब कि 2 लेयर्स, दिस वन, है ना, ऐसा उनके पास जर्म लेयर होगा। देन सी प्लेटीहेल्मिन्थेस, अगेन इट इज इम्पोर्टेंट। प्लेटीहेल्मिन्थेस इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें से बहुत सारे बेसिक क्लासिफिकेशंस का स्टार्टिंग हुआ है। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थेस में यहाँ पे देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुआ है। ओके, ऐसे ही सिमेट्री में भी, सिमेट्री में व्हाट हैपेंड? इट फॉर्म द बायलैटरल सिमेट्री। प्लेटीहेल्मिन्थेस में सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री आई थी। ऐसे ही सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर कहाँ पे आया है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद से सब पूरे कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि उनके पास 3 जर्म लेयर्स है। कौन कौन सी 3 जर्म लेयर्स है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, समझ में आ गया इतना? ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो आगे के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द क्राइटेरिया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, दैट इज सीलोम, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज अपने अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।